Good morning, students. This is exercise 3.2. In this exercise, we will learn to find the square roots using prime factorization method. Third question, find the square roots of the following numbers by prime factorization method. आपको इन numbers के square root find करना है और prime factorization method का use करते हुए. ये पूरी exercise इसी चीज पर based है. सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं. Find the square roots of the following numbers by the prime factorization method 1764. Suppose मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हुए. तो कैसे करेंगे? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना सीखा है. हम 5th स्टैंडर्ड से ये चीज सीखते आ रहे हैं. This is 1764. This is divisible by 2. So we will divide it by 2 and get 882. Then 882 is divisible by 2. So we will divide it by 2 and get 441. This is divisible by 3. So we divided it by 3 and gets 147. This is also divided by 3, divisible by 3 and gets 449, and then it is divisible by 7. We get 7 and 7 1 is 7. Now you can see the prime factors of 1764 is equal to 2 multiply 3 multiply 7 multiply 7. And you can see we can make pairs of prime numbers, like 2 has a pair, 3 has a pair, 7 has a pair. इन सबका एक पेयर बन रहा है. तो ये क्या है? ये इनके प्राइम फैक्टर्स हैं. इनको हमने पेयरिंग कर ली इनकी और हमें मिला अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू पेयर. हमें पेयर के बदले में एक बार ही उस प्राइम फैक्टर को रखते हैं. सो 2 का पेयर है, दैट मीन्स we can take single 2 multiply. There is a pair of 3 also, then we will take a single pair of a single 3 here, multiply 7. 3 2s are 6 and into 7, this is 42. So 1764 is a square 42. एक और एग्जाम्पल समझते हैं. दिस इज 4356. इनके भी हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले. 2 2s are 4, 2 1 is 2, 2 7s are 14, 2 8s are 16. Then 2178 is divisible by 2. So we will divide it by 2 and gets 189. 1089 is divisible by 3. So we will divide it by 3 and gets 363. Then it is also divisible by 3 and we will get 121. 11 is divisible, 121 is divisible by 11. So we will get 11 and 11 1 is 11. We can see the prime factors of 4356 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 11 multiply 11. And this is the pair of 2 square multiply 3 square multiply 11 square. That means यहाँ पर हमारे पास 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है और 11 का भी पेयर है. तो पेयर्स की स्पेस पे हम सिंगल टाइम वो डिजिट रखते हैं. So this is 2 multiply 3 multiply 11. 2 into 3 6, 6 into 11 66. So here we get 66 is the square root of 4356. Now come to the exercise. Our third question is find the square root of following numbers by prime factorization method. दोनों एग्जाम्पल्स जो मैंने समझाए हैं ये इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन नंबर 3 होगा. नंबर 4th, in a garden a farmer plants 9216 saplings in
rows from a square. Find the number of saplings in each row. एक गार्डन में एक फार्मर को 9216 सैपलिंग्स एक रो में लगाने हैं, इस तरह से कि एक स्क्वायर बन जाए उनका. फाइंड द नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन ईच रो. तो मुझे उस रो के नंबर ऑफ सैपलिंग्स बताने कि उस रो में कितने सैपलिंग्स आएंगे. क्या करना है, यहाँ पर भी हम 9216 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द least square number which is exactly divisible by each of the number 8, 12, 15 and 20. आप यहाँ पर इन सब का एलसीएम फाइंड करोगे. एलसीएम फाइंड करने के बाद जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे उनका उस एलसीएम में उनकी पेयरिंग करोगे, जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए अब तक किया है. तो आपका लीस्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा जो कि इन सबसे डिविजिबल होगा. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square thus obtained. यहाँ पर क्या करना है, आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे आप इन नंबर्स में मल्टीप्लाई कर सको और तब हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले. दैट मीन्स दे आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर्स. देखो कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये फाइंड करने का सबसे इजी वे है, हम उसकी लास्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी. पार्ट ए बी सी में लास्ट डिजिट क्या है, 2 है. किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 2 होगी तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. हम इसे भी इसी तरह से करेंगे. इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और पेयरिंग करेंगे. लेकिन इस क्वेश्चन में इन सभी पार्ट्स में एक नंबर आपके पास ऐसा रहेगा जिसकी पेयरिंग नहीं होगी. सिंगल नंबर ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers should be divided so as to get perfect square. Also find the square root of the perfect square thus obtained. यहाँ पर आपको एक छोटा नंबर फाइंड करना है जिससे इन नंबर्स को डिवाइड करने पर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा. इन द सेम वे ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद उनकी पेयरिंग होगी और इसमें भी एक नंबर आपका, एक प्राइम नंबर आपका ऐसा रहेगा जिसकी पेयरिंग नहीं बनेगी. तो अगर हम उससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा. So hope you understood. Now you will complete exercise 3.2 in your maths notebook. Thank you so much.